آپ جان چکے ہیں بلیٹن کا آغاز کریں گے موسم کی تفصیل کے ساتھ۔ نئی امنگوں، امیدوں اور خوابوں کے ساتھ نئے سال کا پہلا دن۔ لاہور نیوز کی جانب سے تمام شہریوں کو نیا سال مبارک۔ سال 2024 کے پہلے روز سورج نے مکھڑا نہ دکھایا، مطلع ابر آلود ہونے کے باعث سورج بادلوں کی اوڑ سے نہ نکلا۔ سورج نہ نکلنے کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ۔ موسم کا حال بتانے والوں نے جنوری میں بارش برسنے کی نوید سنا دی۔ موسم کا احوال مزید بتائیں گی سامیہ سعید۔ بتائیے سامیہ۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں نئے سال کا سورج طلوع ہو گیا ہے، لیکن غروب آفتاب کے مناظر سے بھی لاہور کے باسی محروم ہی رہے، کیونکہ اسموگ اور دھند کا جو راج ہے وہ برقرار ہے۔ اسی طریقے سے صبح بھی ہم نے یہی دیکھا کہ سورج طلوع ہونے کے مناظر جو ہیں وہ ہم اپنی اسکرینوں پر جو ہے وہ اس طرح سے کیپچر نہیں کر سکے، کیونکہ دھند اور اسموگ کا جو راج ہے وہ تاحال بھی شہر لاہور میں برقرار ہے۔ اگر بات کر لی جائے تو نیا سال جو ہے وہ نئی امیدیں اور نئی جو ہوپس ہیں وہ لے کر ہمارے لیے آیا ہے، اور لاہوریے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے لیے جو ہم نے اپنے گولز ہیں وہ سیٹ کر لیے ہیں، نئے پلانز جو ہیں وہ بنا لیے ہیں، اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ نیا سال ہم سب کے لیے جو ہے وہ خوشیوں بھرا سال ہو۔ وہ کہتے ہیں نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے، خدا کرے یہ نیا سال ہم سب کو راس آئے۔ اگر بات کر لی جائے موسم کے حوالے سے تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ آج سردی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ جنوری کے مہینے میں جو ہے وہ بارش برسنے کے امکانات ظاہر کر دیے ہیں۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے تو نئے سال میں جو ہے وہ آج یہی دیکھا جا رہا ہے کہ آج پہلا دن ہے، اور ہمیں اسموگ کی جو شدت ہے اس میں بھی آج ہمیں کمی ہی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اگر بات کر لی جائے تو آلودگی کے اعتبار سے آج لاہور دنیا میں 10ویں نمبر پر براجمان ہے، اور شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 175 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے شہر کے مختلف علاقوں کی تو کینال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 150 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ مصری شاہ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 130 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، سردی کی شدت میں آج اضافہ ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ سامیہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا نئے سال کا بڑا تحفہ سامنے آیا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کی فیسوں میں اضافہ 9 جنوری تک مؤخر کر دیا ہے۔ 9 جنوری تک شہری پرانی فیس ادا کر کے ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپ گریڈیشن کے بعد 36 تھانوں کا ورچوئل افتتاح بھی کر دیا۔ محسن سپیڈ کا عوام کے لیے نئے سال کا بڑا تحفہ۔ 9 جنوری تک ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی فیس میں اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں 9 جنوری تک شہری پرانی فیس ادا کر کے ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپ گریڈیشن کے بعد صوبے کے 36 تھانوں کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ تھانہ گلشن اقبال کی عمارت کا بھی باضابطہ افتتاح کر دیا گیا۔ محسن نقوی نے تھانہ گلشن اقبال کی عمارت کا معائنہ کیا اور فرنٹ ڈیسک کا جائزہ لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے فلاح عامہ کے منصوبوں کے دورے کنٹرول ایکسیس کوریڈور بند روڈ پروجیکٹ کا تفصیلی وزٹ کیا۔ محسن نقوی نے 31 جنوری تک پروجیکٹ مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ نگران وزیر اعلیٰ کا پروجیکٹ کے لیے مٹی سپلائی کرنے والے کنٹریکٹر سے بھتہ لینے کی شکایات کا نوٹس، بھتہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے بابو سابو سے سگیاں تک پیکج 2 اور سگیاں سے نیازی چوک تک پیکج 1 کا بھی معائنہ کیا۔ دونوں کنٹریکٹرز کو کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ منصوبے کے اطراف کی سڑکوں پر تجاوزات مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ڈپٹی کمیشن لاہور کو ٹاسک دے دیا ہے۔ صوبائی وزراء منصور قادر، عامر میر، اظفر علی ناصر اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سال 2023 میں مقامی حکومتیں بحران کا شکار رہیں۔ بلدیاتی آرڈیننس کو بار بار تبدیل کیا گیا۔ الیکشن کمیشن بلدیاتی الیکشن کرانے میں ناکام رہا، جبکہ فنڈز کے باوجود لاہور سمیت پنجاب بھر میں ترقیاتی کام نہ ہو سکے۔ اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باعث 60% شہر اندھیرے میں ڈوبا رہا۔ اس پر بات کریں گے عمران اکبر سے۔ عمران، بتائے گا بلدیاتی آرڈیننس میں کی گئی بار بار تبدیلی 2024 میں کوئی رنگ لائے گی یا نہیں؟
देखिए, इन अंदाज चूँकि 2023 अब गुजर चुका है और मुकामी हुकूमतों के लिए 2023 साल जो है वो बहरान का शिकार रहा है। बल्दियाती आर्डिनेंस को बार बार तब्दील किया गया। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन करवाने के हवाले से भी सूबाई हुकूमतों के आगे बेबस नजर आया। बल्दियाती इदारे अवामी मुंतखब नुमाइंदों की बजाय ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं, जबकि फंड्स होने के बावजूद लाहौर समेत पंजाब भर में तरक्याती काम नहीं हो सके। 2023 में लाखों मकीन बुनियादी सहूलतों से महरूम रहे। इस वजह से देखा गया है कि दीगर अजला की तरह लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन भी मुख्तलिफ बहरानों से दुचार रही। तकरीबन 2 साल से तरक्याती काम नहीं हो सके। लाहौर शहर की 60% से ज्यादा इलाके जो है स्ट्रीट लाइट से महरूम है और अंधेरों में डूबे हुए हैं। शहर में तजावजात की भरमार रही है। शहर में गैर कानूनी तमीरात धड़ल्ले से तमीर होती रही। टाउन प्लानिंग विंग 35% से ज्यादा रेवेन्यू टारगेट पूरा न कर सका, जबकि 2023 रेगुलेशन और प्लानिंग विंग को 1 अरब से ज्यादा रकम का सरकारी रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। म्यूनसिपल सर्विसेज के मुतालिक मसाइल कम होने के बजाय बढ़े हैं। ये भी देखा गया है कि बल्दियाती कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से साल 2023 मायूस कन रहा। बल्दियाती इदारों की तरक्की के लिए एक्ट 2022 का नफाज किया गया, जबकि निगरान हुकूमत ने अख्तियारात न होने के बावजूद बल्दियाती एक्ट 2022 खत्म करके बल्दियाती एक्ट 2013 नाफिज किया, जिसमें पहले ही बेशुमार सुकम मौजूद थे। साल 2023 में डेथ बर्थ सर्टिफिकेट के इजरा के लिए नादरा से मुंसलिक करने का प्लान भी ताहाल नाफिज अमल नहीं हो सका। पंजाब भर में बल्दियाती इदारों की सरकारी जमीनों का डाटा कंप्यूटराइज किया गया। इनकम में 250 से ज्यादा फीसद इजाफा हुआ, जबकि लाहौर शहर में तमीर तरक्की और साबका अदायगियों की इजाजत अब दी गई है, जबकि शहर में स्ट्रीट लाइट, टूटी सड़कों, गलियों की पैच वर्क, तमीर और मरम्मत का काम भी उसकी भी इजाजत दे दी गई। मगर शहर में 3 अरब के तरक्याती काम मंजूर किए गए। ये काम अब 2024 जनवरी में शुरू किए जाएंगे, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इन कामों से शहरियों के मसाइल कम होंगे, लेकिन आटे में नमक के बराबर तक ही ये जो है मसाइल कम हो सकेंगे। जबकि इस वाले से एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफी हैदर का कहना है कि लाहौरियों के मसाइल बहुत ज्यादा है, लेकिन निगरान सेटअप में कानून के मुताबिक। ठीक है इमरान, तफसीलन आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएंगे सिटी डिवीजन पुलिस का न्यू ईयर नाइट पर क्रैकडाउन, हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश और 1 बिलियन के 40 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। 11 मनशियात फरोशों से 7 किलो चर्स, 71 लीटर शराब बरामद हुई है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुकदमात का इंदराज हो चुका है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे मुबीन हैदर से। जी मुबीन। नाइट में क्रैकडाउन सामने है, जिसके अंदर 46 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। सिटी डिवीजन पुलिस का न्यू ईयर नाइट में कानून के नाजिक के खिलाफ क्रैकडाउन के अंदर गए कानूनी असला और हवाई फायरिंग के मुल्क 24 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। 1 बिलियन करने वाले 10 मंशले राहों के पीछे भेजे गए। 11 मनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए, जिनसे 7 किलो चर्स, जबकि 71 लीटर शराब भी बरामद कर ली गई। आतिशबाजी करने के खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। उसके बाद मुलजिमान कब्जे से भारी मिकदार में असला बरामद किया गया। 1 मिलियन जो उसके अलावा जो बिलियनों के खिलाफ $0 पॉलिसी इस्तेमाल की गई और भी जो है बाइक्स वगैरह और बाकी सामान भी तहवील में लिया गया। इसके अलावा जो SP कैप्टन रिटायर्ड काजी अली, उन्होंने हवाई फायरिंग, नजायज असला, 1 बिलियन मनशियात फरोशों के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन जारी करने का अज़म भी जाहिर किया। बहुत शुक्रिया आपका मुबीन। शहर लाहौर के 9 टाउन्स में 15,47,899 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया, जबकि 1139 पर मौसूल होने वाली 59,670 शिकायत का अजाला किया गया। गैर कानूनी डंपिंग पर 8,618 चलान और 397 गाड़ियाँ जब्त की गई। LWMC ने साल 2023 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 2023 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2023 में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर लाहौर के 9 टाउन्स में 15,47,899 टन वेस्ट ठिकाने लगाया, जबकि 1139 पर जो कॉल मसूल हुई शिकायत के अजाले के हवाले से 59,670 थी और उनका अजाला किया गया। लोकल गवर्नमेंट पोर्टल की 289, CM पोर्टल की 294 और स्पेशल ब्रांच कंप्लेंट्स की 1,230 से ज्यादा शिकायत का अजाला किया गया। गैर कानूनी डंपिंग पर 8,618 चलान किए गए, जबकि गैर कानूनी डंपिंग और कूड़े के फैलाव पर 1,68,58,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 459 FIR का अंदराज करवाया गया। इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों के तहत 564 चलान किए गए, 12,94,000 के जुर्माने और 318 FIR दर्ज करवाई गई। गैर कानूनी डंपिंग करने वाले 397 गाड़ियां भी जब्त की गई। गाड़ियों की तादाद में कमी से माहाना तकरीबन 1.5 और 2 लाख लीटर ईंधन की
बचत की गई। COLWMC पावर साहब का कहना है कि इस बार तारीख में पहली बार मुस्लिम मुलाजिम के लिए हज पॉलिसी के तहत 3 खुश नसीबों को हज पर भेजने की जो है तैयारी की गई है, जो कि इस बार पहली दफा हुआ है। इसी तरह 2023 में LWMC के 10,000 से ज्यादा मुलाजिम को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा किया गया। LWMC ने शहर भर में मौजूद 94,000 यूनिट्स को बढ़ाकर 5,50,000 यूनिट कर दिए हैं, जिसमें कमर्शियल शॉप्स, पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक प्राइवेट दफातर, बैंक, वर्कशॉप, फ्यूल स्टेशन, प्राइवेट क्लिनिक, शादी हॉल, ब्रांड शॉप्स और सनती यूनिट से 1,000 रुपए वसूली की मंजूरी दी गई है। इस वाले से बाबर साहब का कहना है कि लाहौर में पहली बार वेस्ट एम्प्लॉयर UC 81, 83, 198 और 218 में रिसाइकलिंग की जा रही है, जबकि शहरियों को भरपूर तावन करते हुए हमेशा सफाई बरकरार रखने वालों के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया इमरान। LDA की नए साल में तजावुजात माफिया के खिलाफ नई हिकमत अमली। पहली मरतबा तजावुजात माफिया पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। जुर्माने आयद करने के लिए LDA कवानीन में तरमीम कर दी गई है। शोबा टाउन प्लानिंग को इमलाक सरबा मोहर करने और FIR दर्ज करवाने की इजाज़त दे दी गई है। बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। रमनाथ के साल 9 में तजावुजात माफिया के खिलाफ एक नई हिकमत अमली बना ली गई है कि LDA की तारीख में पहली मरतबा तजावुजात माफिया पर जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग को इमलाक सर्ब मोहर करने और FIR करवाने की तो इजाज़त मौजूद है, ताहम जुर्माने आयद करने के लिए LDA कवानीन में तरमीम कर दी गई है, जिसमें गैर कानूनी कमर्शियल इमलाक और कमर्शियल सरगर्मियां करने पर प्रॉपर्टी की फाइल को बंद किया जाएगा, यूटिलिटीज को मुनक़ता किया जाएगा, जबकि LDA कंट्रोल्ड एरिया में वाक़ई इमलाक को 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में जुर्माने किए जाएंगे। इस सिलसिले में LDA गवर्निंग बॉडी ने बिल्डिंग रेगुलेशंस में तरमीम की मंजूरी दे दी है और LDA की हाउसिंग स्कीमों कंट्रोल एरिया में ये कानून नाफिज कर दिया गया है, जिसमें गैर कानूनी लैंड यूज कन्वर्जन करने पर 5 मरला इमारत को सर्ब मोहर करने के साथ साथ DC रेट का 1% जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी तरह 10 मरला इमारत को। ठीक है ज़ैन, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। साल 2023 महकमा पुलिस के लिए अच्छा साबित हुआ। सुबह भर में 20,000 एहलकारों की तरक्कियां हुई तो वहीं 737 पुलिस स्टेशंस को स्पेशल इनिशिएटिव प्रोटोकॉल पर मुंतकिल किया गया। मुख्तलिफ अजला में 4 स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तामीर की मंजूरी दी गई। इसी पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ ने। जी मुजाहिद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? मुजाहिद से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे तो आपको बताया जा रहा है साल 2023 महकमे पुलिस के लिए अच्छा साबित हुआ। सुबह भर में 20,000 एहलकारों की तरक्कियां हुई, जबकि 737 पुलिस स्टेशन को स्पेशल इनिशिएटिव प्रोटोकॉल पर मुंतकिल किया गया है। महकमा इजला में 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तामीर की मंजूरी भी दे दी गई है। तो आपको बता रहे हैं कि साल 2023 में तरक्कियों के हवाले से खबर सामने आई है। सुबह भर में 20,000 एहलकारों की तरक्कियां हुई तो वहीं 737 पुलिस स्टेशन को स्पेशल इनिशिएटिव प्रोटोकॉल पर मुंतकिल किया गया। मुख्तलिफ अजला में 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तामीर की मंजूरी दी गई और आपको बता रहे हैं कि साल 2023 महकमा पुलिस के लिए अच्छा साबित हुआ। नए साल के आगाज पर महंगाई का नया वार। मुर्गी का गोश्त एक ही रोज में 32 रुपए फी किलो महंगा। फार्मी अंडे 480 रुपए फी दर्जन बिकने लगे। मौसमी सब्जियों के दाम भी बेलगाम गिरा फरोशों की जानिब से मनमाने रेट वसूल किए जाने लगे हैं। मज़ीद बताएंगे अब्दुल कादिर। बताइए अब्दुल कादिर। आज महंगाई के हवाले से बात की जाए तो जो सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। प्याज जो है गुज़िश्ता कई रोज से मुसलसल महंगा हो रहा है, रोजाना की बुनियाद पर महंगा किया जा रहा है। आज मजीद 5 रुपए महंगा करके 180 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में दर्जा अव्वल का मेयारी प्याज जो है 230 से 240 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि पोल्ट्री मसनूआत में ब्रायलर की कीमत में भी गैर मामूली इजाफा कर दिया गया और अंडे की कीमत जो है वो तो रोजाना ही बढ़ रही है। आज ब्रायलर 32 रुपए महंगा करके 541 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। अंडे जो है मजीद 2 रुपए बढ़ाकर 374 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में अंडे जो है 480 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फी अंडा जो है वो शहरियों को 40 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। अंडों की कीमतों में कोई कंट्रोल जो है वो इंतजामिया का नजर नहीं आ रहा है। इंतजामिया सिर्फ सरकारी नकनामे जारी करके अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक सारिक मौजूद हैं जो कि खरीदारी के लिए आए हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर मैं गोश्त लेने के लिए आया हूँ, शादी बच्ची की शादी है तो इन्होंने मैं पूरी मार्केट चक्कर लगाया, इन्होंने रेट दिया जी 580 रुपए दिए मुझे इन्होंने
ठीक है, फाइनल जो है ना 550 रुपए इन्होंने किलो दी है। सब्जी भी इसी तरह ही है कि जो भी चीज़ है ना, कि जो भी चीज़ परचेज करने जाता है तो वो हर चीज़ महंगी। एक बंदे की सैलरी है 20,000 या 15,000 रुपया, वो बिल उतारेगा, घर के खर्चे पूरे करेगा, क्या करेगा बंदा। और हर चीज़ पे आग लगी हुई, मछली वैसे ही नहीं हाथ लगा, गरीब बंदा तो वैसे ही नहीं खा सकता। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू चुनी। इनका कहना है कि जो चीज़ भी खरीदने आए तो पता चलता है कि कीमत बढ़ चुकी हुई है। ब्रायलर की कीमतों में इजाफा हो चुका हुआ है, अंडे महंगे हो चुके हैं, सब्जियां महंगी हो चुकी हैं और फलों की सूरत हाल जो है वो तो आवाम के लिए जो है वो अबतर से अबतर ही होती जा रही है, क्योंकि सेब जो है वो 480 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आज जबकि केला जो है 200 रुपये फी दर्जन तक, अंगूर जो है 600 रुपये दर्जन तक किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। कीनू जो है वो 300 से 350 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार बदाना जो है 950 रुपये, अनार कंदारी 450 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। हर चीज़ जो है अब आवाम की पहुँच में ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल